الاقليم في استنباط التنظيم كل فعل مطلوب ترتب على فعل مفسد الاقوام المفسد تركه. آگے چلیے چوتھا والا آگے چلیے کیا کر رہے ہیں اصل کتابیں دو یا ان کو اصل کتابیں کتاب دکھائے. یہ اصل فرشتے ہمارے پاس رجسٹر پڑے ہوئے ہیں. پڑھو پڑھو رجسٹر سے پڑھو. آگے چلیے کتاب دکھائے صفحہ بتائیں. کوئی عبارت پڑھیں. جو کتاب کا ہم صفحہ پڑھ رہے ہیں ہم آپ کو کتاب صفحہ نکال کے تمہارا آگے دیکھو بہت پڑھنے کا کیا مطلب ہے. بیٹھو یار بیٹھ جاؤ آپ کیوں کھڑے ہو. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ جائیں. آپ کا کیا کام ہے ان میں سے دکھا رہے تفسیر نور العرفان میں نے پیش کیا. تفسیر نور العرفان اگر غیر ضروری عبادت ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ ہمارا اس کا ایمان کا ہے. احمد رضا کہتا ہے ایک جائز کام جس سے فتنے اور نفرت پیدا ہو آپس میں پھوٹ پڑے یہ ناجائز ہے. یہ بات ہے الگرین کا کل فعل مطلوب پوری کا ہوں. یہ بات ہے وہ کہتے ہیں چھوڑ دینا چاہیے جب اس سے مفاسد پیدا ہو. یہ تبیان مال بیان یہ صفحہ نمبر 276 اس پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. اگر آنے حق کو اس جائز قول و فعل سے بھی روکا جائے گا جو آنے بات کرتے کسی نبیت کی تربیت کے مطابق. بات سنیں میری. ایک جائز کام سے جب مفاسد پیدا ہو اس جائز کام کو بھی روکا جائے گا. سنیے سنیے سنیے. ایک جائز کام سے جب مفاسد پیدا ہو اس جائز کام کو روکا جائے گا. یہ بات فقہا نے لکھی ہوئی ہے. یہ علماء تدریجی نے بھی لکھی ہے. اور اب مفاسد کو دیکھو. یہ اخبارات میں پیش کر رہا ہوں کہ اسی آپ کے جلوس کی وجہ سے قتل و غارت ہوئی. اور کس نے کی لوگ ہیں کس نے کی. ہاں ہم بتاتے ہیں کون. یہ دیکھیے اور عید میلاد النبی یہ پہلے بات نہیں ہے. اس پہ آپ بول رہے ہیں یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے. اس پہ آپ نے کوئی بات بولا تو پہلے شرائط سے کہہ رہے ہیں. آپ چپ کر کے بیٹھے. آپ چپ کر کے بیٹھے. میری بات کا آپ جواب نہیں ان کو بولنے دے. مولانا یہ کون سی بات ہے. میں پیش کروں گا بولنا شروع کر دیں. عید میلاد کے جگہوں کے اندر جلوس کے اندر لڑائی جھگڑے متعدد زخمی. آپ اس کو دیکھیں فیصل آباد ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جلوسوں پہ فائرنگ اتر پردیش میں جلوس نکالنے پر 2 فرقوں کا تصادم 50 زخمی. اور آگے چلیے اور مفادات میں دکھاتا چلا جاؤں آپ کو. یہ جناب یہ دیکھیے اس جلوس میں جا کر مولانا ضیاء القاسمی صاحب کی مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی. قرآن پاک شہید کیے. احادیث طیبہ کا کیا ایک
बहुत बड़ा मफसदा पैदा हो रहा है, इसलिए इसको बंद करना चाहिए। सबसे बढ़ के मैं ये कहता हूँ, अहमद रजा खान की एक किताब है, यहाँ किताब मौजूद होगी, रिसाला ताज़ियादारी, उसने इस किताब के अंदर ये ताज़िया निकालने के मुतल्लिक़ लिखा है कि इस ताज़िया को नहीं निकालना चाहिए। अगरचे लिखा है कि अगरचा ताज़िया जो है अपनी असल के एतबार से दुरुस्त है, लेकिन मफासद की वजह से और खराबियों की वजह से इसको बंद कर देना चाहिए। और आगे खुद जाके सवाल उठाते हैं, अगर कोई बंदा सही ताज़िया निकाले, मफासद से पाक साफ हो, क्या वो ताज़िया दुरुस्त है? कहता फिर भी दुरुस्त नहीं है, मफासद का जरिया बढ़े और ये सबसे बड़ा मफासद ये इब्लीस का नक्श, ये अजहरी, ये जनाब तुम्हारा वो अख्तर रजा खान अजहरी साहब का एक किताब और रिसाला ये किस्म का है। इसने लिखा है इस किताब के अंदर कि ईद की खुशियों के अंदर हमारे बरेलियों की मस्जिदों के अंदर रक्स किया जाता है। ये देखो लड़की नाच रही है, ये देखे असल नहीं, अगर असल नहीं हो तो फिर हमसे बोलो ईद मिलाद नबी ने लिखा हुआ नीचे, ईद लिखा हुआ, ईद लिखा हुआ, ईद मिलाद नबी है, ईद लिखा हुआ दरबारों पे ईद मिलाद नबी पे होया, ईद मिलाद नबी की दलील दो, ईद मिलाद नबी पे दो याद से ये देखो दिखाओ ना, यहाँ पे दिमाग दिखाओ, ये क्या है दिमाग दिखाओ यहाँ पे। और अगली बात ये हफ्ता पेश करना था, ये हफ्ता मसला बार बार पेश करता है। ये हजरत थानवी का रिसाला है और हजरत थानवी ने उस दौर के अंदर लिखा था कि हजरत थानवी इस बात के कायल थे, लेकिन बाद में हजरत थानवी ने रुजू कर दे और ठोक के इसके तरतीब के अंदर लिखा है। ये तज़किरतुर रशीद के अंदर ये खत्म किताबत सारी मौजूद है। तज़किरतुर रशीद की पहली बात पढ़ता है, अगली क्यों नहीं पढ़ता? मैं आगे भी पढ़ के देख रहा हूँ जब हजरत थानवी आगे इसके ऊपर खुद दलाइल दे रहे हैं कि इसके नजायज़ पर, और ये खुतबात मिलादुन नबी इसको देख, इसमें हजरत थानवी ने दलाइल अरबा से इसके मफासद और इसके ममनुआत को साबित किया है। और वो क्या किया है? गलत किया है ना, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हो, पैसे मिलते तनख्वाह मिलती। मैं वही कह रहा हूँ हजरत थानवी का ये वो दौर था कि हजरत थानवी पहले जाया करते थे, लेकिन हजरत थानवी ने बाद में रुजू करके आप सुने, अहादीस तय्यबात के अंदर दो किस्म की अहादीस मिलती है, नासिख भी मिलती है, मंसूख भी मिलती है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर अहादीस मौजूद है कि हुजूर ने दो खाने से मना फरमाया, और अहादीस की किताबों के अंदर तिरमिज़ी वगैरह में मौजूद है कि सहाबा के दस्तरखान पे वो खाई गई। अगर तुम ये कहते हो कि पहले वाली बात इज्जत है तो फिर आपको खा के तुम दिखाओ, पता चल गया हर बात जो एक मनसूख हो जाए, मनसूख बात को उठा के फिर पेश नहीं किया जा सकता। हम नासिख पेश कर रहे हैं कि हजरत थानवी ने खुद बात इस मिलादुन नबी के अंदर दलाइल अरबा से साबित किया इसकी मजम्मत को, तो अब इसको तर्क कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इसका लिए कोई जरूरत नहीं है। और आगे बात सुनिए, आप कह रहे थे हजरत गंगोही रहमतुल्लाह ने हर हाल लिखा है, हर हाल ये जो ये हजरत थानवी की इबारत है। और देखो हजरत थानवी रहमतुल्लाह की बात आ गई, और अगली बात तो आप क्यों हजरत गंगोही रहमतुल्लाह की हर हाल का जवाब दे रहे थे आप जनाब, हर हाल कह रहे हो, बात सुनो, बात सुनो, कह रहे थे कि हर हाल में हजरत गंगोही ने लिखा है। मौलाना हर हाल में तो हत्तल खिंजीर भी है कि हर हाल में खिंजीर पाक है, और चट के खाता करो फिर हमने दलाल से साबित कर दिया कि कुरान और सुन्नत के दलाल, और सबसे बेहतर हजरत पीर सैयद जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुर्रियत तालिबीन में ये ज़िक्र कर दिया है। और हम उस कादरी को मानने वाले हैं, वो कादरी बहुत बड़ा पीर लिखता है, कादिर है, उनके मानने वाले कादरी, सुनिए वो भी कादरी है, कादरी है, वो भी कादरी है, वो भी कादरी है। सुन सिलसिला कादरिया के बाद ही है
ये सुन, उन्होंने अपनी किताब हुज्जत उत-तालिबीन सफ़ा 95 के ऊपर कौल नकल कर दिया है कि जनाब जिस बात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सबूत न हो, सहाबा किराम के जमाने के अंदर उसका सबूत न हो, हमने क्यों दिए उसका, अब उसकी जो नहीं है ना राय नहीं है, हाँ उसकी राय लगाना दीन में बिदअत है और हदस है। जब मुतलक आए सही है तेरे जितने दलाइल थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेश कर दिया। एक झूठ इसलिए बोला था कि गौस कहने वाला मुशरिक है, लेकिन उसका हवाला नहीं पेश कर सकता। मैंने तेरे आला हज़रत की तहरीर से तुझे काफिर साबित किया, हवाला नहीं पेश कर सका। तू जनाब नसीरुद्दीन का इनकार कर गया, तारुल कादरी का इनकार कर गया, वो सारे मुल्लों का इनकार करता चला जा रहा है। और अभी तो मैंने तनकीदात इक़्तिदार भी पेश कर दी है, तो उसको भी इनकार करेगा। अपने मौलवियों को इनकार करके तदीब करके तू कैसे जीत सकता है भाई? जिसके अपने मौलवियों का मैं इसको भी नहीं मानता, इसको भी नहीं मानता, जो आमद रज़ा तक सबका इनकार करता चला जाएगा, उसको कैसे कहा जाए? अगर ऐसे आला हजरत के मानने वाले हो तो फिर आला हजरत का जो हम अकीदन हो वो काफिर है। तू काफिर है अपने आप को कहना, अपने आप आला हजरत ने जश्न ईद मिलाद नबी का जुलूस निकालो, पेश करो। और ये हिंदुस्तान सबसे दिखाओ, हदीस से दिखाओ, सबसे एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, दलील जो है वो मुद्दई के जिम्मे है ना, एक दलील भी नहीं। मौलाना मैंने दलील पेश कर दी है आपको कि अहमद रजा खान ने 1932 के अंदर सबसे, मैं दलील पेश करता हूँ, ये सीरत अनवार मदरिया 1932 के अंदर सबसे पहला जुलूस निकाला गया था। ये क्यों लेकिन बरेलवी इस बात पर कायल है, यहाँ पर ये इस बात पर डटे हुए हैं कि हमने तकरीर करनी है, ये शराइत के खिलाफ चल रहे हैं। उनको चाहिए मशवरे से 2:30 बजे का टाइम तय हुआ था, पूरे 2:30 बज चुके, 3 मिनट ऊपर हो चुके, लेकिन बैठ नहीं रहे, ये फरार है, वो पूरा इंटरव्यू दे रहा है, उसकी बात हुई थी, आप लोगों ने सबने 2:30 बजे तक हमारी होगी, 2:30 बजे तक 5 मिनट हो गए, सुनना पड़ेगी सारी फैसला आपको सुनना पड़ेगा तो
की जगह आपको चेयरमैन चेयरमैन की बजाय बोलने देंगे ईमान से साबित नहीं कर सके। ये बता रही कितने बजे का टाइम तय था और टाइम था 2:30 बजे का, टाइम खत्म हो चुका। बैठो बैठे जी, हमारे उलमा बैठे, आप बैठे, बैठा दें जी।
पहले बैंक तय शुदा थी, रिकॉर्डिंग हुई है हमारे पास। ये रिकॉर्डिंग फुल टर्म नहीं देते, आधा दे दे 5 मिनट लेकिन हो जाए। पहले जो वक्त तय हुआ था यहाँ दाखिल होते ही आजान होते होने के साथ खत्म होना था। उसके बाद होते होते जब झगड़े का खतरा पैदा हुआ तो फिर मशवरा करके दोबारा 2:30 बजे तक कर दिया। ठीक है ठीक है। अब ये टाइम बढ़ाते रहेंगे तो कब तक बढ़ाते मुकम्मल नहीं हो सकती है। हमें पता है जो बच्चे तो नहीं मैंने तो 5 मिनट आपको दे दिए, चलो 10,000 मेरी बात जनाब मेरी बात सुने हजरत, मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं सुनेंगे, ये बात पहले तयशुदा थी, ये भी तयशुदा थी, तक होगा ये तयशुदा बात। मैंने कहा ये बात तयशुदा थी, हमारी आपको ये बात रखनी चाहिए थी। 2:30 बजे तक की बात थी, 2:30 बजे तक होगी। आप 2:30 से 10 मिनट ऊपर हो जाए। आपने मुखालफत की, उसके मुनाजरा था 7 बजे, आप आए 9:30 9 बजे। हम इधर परसों के आए हुए हैं, परसों के 2 दिन हो गया हमें आए, 1 घंटा पहले आए, 1 घंटे इधर पहले आए, हम 1.5 घंटा पहले आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबें 3 साथी पहुंचे हुए 7 बजे। सबसे पहले जो वक्त मुनाजरा था उसकी मुखालफत आप आजाद की तरफ से हुई है। 3 साथी घुमाए की किताबें 7 बजे पहुंच चुके थे, हम पीछे मकान में बैठे थे, हम पीछे मकान में बैठे थे। हम तो इधर ही बैठे रहे। ये आपने ठीक है। आपने खुद नहीं फरमाया कि आप लोग पठाने जो मुंह से कह दे आखिरी टर्म को उनके साथ कहा आपकी तरफ 2:30 बजे उनकी तरफ आखिरी टर्म है, तो आप इसमें तस्दीक करेंगे ना। आखिरी बात
हम भी कहेंगे हमारे ऊपर सवाल करेंगे उसका जवाब देना हमें मुनाज़िरा ना मुजाहिरा के लिए नमाज का मस्जिद नमाज या मुस्तहब वक्त ज़ाय करना मुजाहिरा के लिए फैसला हो गई या मंजना वक्त मुकर्रर थी या वही संदो दलालों का मफादत वक्त जो अब ये जो हमारे ऊपर इश्काल करेंगे हमारा जवाब देना हम जवाब दें चलो ये फिर बाद में आखिरी टर्म ले ये तो सिलसिला चलता रहेगा हमारे खिलाफ ये बात करेंगे हम उसका जवाब देंगे हमारी बात का जवाब देने के लिए फिर ये कहेंगे हमें आप बताइए हमें आखिरी बात कर दिया जाए सिलसिला चलता रहेगा फिर किस वक्त बंद करेगा 2:30 बजे तय थी बंद तो बस बंद कर दिया 2:30 बजे तय था 2:30 बजे तय हो खत्म से खबर ना वो बात ना दुई गल भी सुन का ना दुई गल भी सुन नहीं मानते मैं 5 मिनट की कोई दलील पेश नहीं करनी सवाल जवाब नहीं देने नहीं जेडे उन्होंने जेडे हवाला जिते उन्होंने रद्द पेश करना रद्द पेश करना है अभी नमाज यार मेरी बात सुनो नहीं ये जो जनाब सदर मुनाज़िर साहब है ना अभी टाइम बाकी था जब इनकी टर्म खत्म हुई है ये शरारत करने के लिए उठे खड़े हुए कि मैं 2 मिनट बात कर रहा था तो इसकी घड़ी पे इसको पूछो खुदा की कसम दे के क्या ऐसा इसकी मुझे जो 2 मिनट बाकी अढ़ाई बजे के बाद बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी ये बात दोनों के इत्तेफाक से तय हुई है कि 2:30 बजे के बाद बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा 2:30 बज चुके उसको खत्म होना चाहिए ये बात आपको पहले मुलाजा होनी चाहिए कि के बाद टर्म होती है जब दोनों फरीकैन ये बात मुत्तफिक थी इस बात पर सबका इत्तेफाक था कि 2:30 बजे तक टाइम होगा 2:30 बज चुके हैं 2:45 हो चुके हैं तो अब तक फिर दोबारा बात करने का क्या माना और ये इनसे पहले टाइम से आ गया सुबह 2 घंटे ये लेट आए अगर ये 7:30 बजे आ जाते इनको ये ना देखना पड़ता अब इनको टाइम का ख्याल आया अगर ये टाइम पे आ जाते हम 1.5 घंटा पहले यहाँ आकर बैठे रहे कोई नहीं यहाँ पर नहीं आया फिर उसके बाद हम इनके घर में आए ये नहीं आए डर की वजह से बाहर न निकल सकते थे जब हम इनके घर में आ घुसे उसके बाद मजबूरन ये शर्मिंदा होकर बाहर निकले अब जब टाइम पूरा हो चुका 2.5 घंटे का फिर क्या माना बात करने का हादीस को हाथ नहीं लगा एक बार को कुरान उठाया उसके बाद तुम्हें कुरान भूल गया हादीस भूल गई अब तुम्हारे पास क्या है इसको इजाजत देनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह किताबुल्लाह से भी हमने सारे दलाइल का जवाब दिया हदीस तैयबा को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं इमाम बुखारी को गुस्ताख कहते हैं और हमने
दिया कि वो आप जब इतना खतरनाक आते हो क्या करना चाहिए? ने कहा कि फैसला होने के सारे सीन ने फैसला कर दिया, सारे सीन ने फैसला कर दिया है कि आपने खत्म कर दिया है। आप बिल्कुल बिल्कुल बोलने की कोई इजाजत नहीं है। सालिस का फैसला है कि बिल्कुल आप खत्म कर दिया जाए, आप बिल्कुल इनको बोलने की इजाजत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह के दलाइल ये बिल्कुल तौर पेश नहीं कर सके। हजरत गौस पाक के नाम से क्या भी एहसास दिखाना, लेकिन उनके दलाइल की बुनियाद में ये बिल्कुल नाकाम हो गया। भाई जान हो गया खामोश हो गए इसको ले जाना खत्म हो गया। अब दोनों फरीकैन की जानिब से जो सालिस को ताज़िर किए गए थे, दोनों सालिसों ने आपस में बैठ कर ये फैसला कर लिया है कि टाइम खत्म हो चुका है, अब फरीके मुखालिफ को मज़ीद बात करने की इजाज़त नहीं है। तो इंसाफ पर मबनी कौन है कि अब इसको मान लेना चाहिए, इसलिए कि सालिस और मुनसिफ जो है उसका फैसला हतमी हुआ करता है। अगर इनके पास इस लिहाज से मौजूद है पर गौर जनाब वो दरवाजा खोल देना यार, फिर बंद कर देना जनाब। भाई जाना इसके बाद की जरूरत नहीं। अगर फुट स्टेट रहा ढूंढ रहे सुने ये बात ये सुने जो वक्त था ये सालिस बात कर रहे हैं वो खत्म हुआ। अब नमाज पढ़ते हैं और फैसला करेंगे तो बाद में फैसला किया जाएगा। अभी इसके बाद मुनाजरा के लिए कोई वक्त है और न इसके बाद मुनाजरा होगी। सब निकलने की इजाजत है, निको और मैं चला गया नमाज भवन से की जा रहा मौलाना हम क्या करें, हमारा क्या कसूर है? आप उसी वक्त घड़ी को दिखा देते ना, उसी वक्त घड़ी दिखा देने के बाद आती है। आप क्यों घड़ी दिखा देते, आप घड़ी दिखाते
ये गलत बयानी है कि बाकी नहीं था दिखाते आपके पास पूरे 2:30 बजे पता तो लग गया आधा घंटा बहस में जाया कर दिया, 5 मिनट दिल्ली वजह क्या है? वजह टाइम नहीं है, अगर टाइम वजह होता तो आप निकल जाते। वरना 5 मिनट हमारी ये बात सुन लेते। मसला टाइम का नहीं है, मसला टाइम का नहीं है। अगर टाइम का मसला होता तो ये बात सुन लेते, ये 15-20 मिनट में बात ना करते। आप उसको देखकर आपने बड़ी शरारत की है। कोई बात नहीं है, जैसी कोई बात होती है देखो ना, पहली बात ये कि हम उधर आगे हमारी किताबें पहले लगी हैं, हम 1.5 घंटा पहले आए हैं, पूछ रहे उनसे पहले आए नहीं तो टाइम वक्त की पाबंदी 1.5 घंटा लेट आप हो साथ में हमारे मेरे साथ सुने ना अपनी आप बहुत बोले हैं ना, इस तरह आराम है। मैं आराम से बात कर रहा हूँ, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। ये तय पाया था बात तो सुने के लिए तैयार नहीं है, फिर हमें बहुत बोलना पड़ेगा। बात तो सुने, बात क्या मेरे भाई कि तय ये पाया था कि पहली टर्न और आखिरी टर्न होगी हमारी, ठीक है। अब बात होगी टाइम की। अगर तो मसला आपको टाइम का होता तो 15-20 मिनट 30 मिनट तो आधा घंटा में शो डालते हुए हो गया। हमारी 5 मिनट गुफ्तगू सुनने में क्या मुलाकात था और की इब्तिदा आपने की है, हमने नहीं की। आपका 8:15 यहाँ टाइम है, आप 9:30 बजे यहाँ आए हैं, इसलिए आए हैं लेट। सुने एक घंटा क्यों लेट आए थे? बात कर रही पहुँचते बात करते बाद में आते हैं कि जो ना वो आपने पहले टाइम जाया है, आपने मुंह छोड़ी थी, हम सीढ़ी जब खेच के नीचे से फिर आप औने पौने हो गए। ये बात अच्छी है, आपको वैसे 4:30 होना चाहिए था। परेशानी तो आपने टाइम जाया किया, आप मतलब पता तो लग गया कितने पानी से पता लग गया ये भी पता है मसला ईमान का टेम्परेचर क्या जा मैं क्या टेम्परेचर होंगे, ईमान का टेम्परेचर होंगे, बगैर तो टेम्परेचर नहीं होता। जे ईमान होगा तो टेम्परेचर होता है, खत्म हो गया। ईमान होगा तो टेम्परेचर होता है। ऐसी बात करें, ईमान वाले खत्म हो गया, ऐसी बात ना करें। टेम्परेचर ईमान इधर देखें, इधर ये कह रहे हैं जी कि आप वक्त में नहीं आए, ये कुरान मेरे हाथ में है। मलक असद की पहली मुनाजरे की पहली जो जगह है, मलक असद के घर में 7:30 बजे ठीक में वहाँ पानी चला, वो पानी जब वहाँ से ऐसे खुदती है, 1.5 घंटा मछली बाहर आके ऐसे खुदती है जैसे आप देख रहे हैं। गलत कह रहे आप निकाह करे अपना कलमा पड़े जाके
ये काफिर हो गया, काफिर हो गया। उलमा की गुस्ताखी कर रहे, बेगैरत कह रहे हैं उलमा, ये इसका हाल है। अब बैठो ना, उसको भी हम पे बैठा थे, अब बैठो 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 अब बैठो कभी भी क्या कभी भी जरा हाथ के पार्टी के सामने जाके नहीं कभी भी बात के सामने तो सीना नहीं हमारे बापू के सामने बैठ जाए आप बैठ जाए बस अली भाई बस ठीक है जी डर छोड़ा बस बस करो ये मेरा ये हमारे नहीं का सबूत नहीं है, ये बात मैं भी साबिक बरेलवी हूँ, इसीलिए तो देख के आया हूँ। तो आ जा मेरे नाल, क्योंकि तू मान गया मिलाद दलाल नहीं है, मान गया दलाल नहीं है मिलाद। सही बात, हम छोड़ दें इंशाल्लाह मसला बिल्कुल मसला हम वही तो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं मुरब्जा में छोड़ दे, ये मुरब्जा वाली बात है। कोई बात नहीं, ठीक है नस्वार तो है ना। मोबाइल आपका है जी? नहीं ये मेरा नहीं। कौन सा है? नारा तकबीर, नारा हैदरी भी लाओ, नारा मोहम्मद खामोश
بس خاموش تھی گئی قاضی صاحب ویڈیو شروع کروں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فریقین نے حمد و علماء کرام کو ثالثان فیصلہ مقرر کیا علماء کرام کے نام یہ ہیں مولانا محمد سیف اللہ خان مولانا غلام السلیم صاحب جس بنا پر ہم ثالثان نے فیصلہ کیا کہ فی الحال دونوں فریق کمرہ مباحثہ سے نکل جائیں اور فریقین کے دلائل پر ہم دو ثالثان علماء کرام بعد غور و خوض فیصلہ کے لیے وقت مقرر کر کے فیصلہ لکھنے کے بعد فریقین کو سنانے کے لیے وقت بتائیں گے اس پر ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا ابھی سب ساتھی پیار محبت سے اپنے نماز کرنے کے لیے نکل جائے اور فیصلہ ہم یہ کر کے لکھ لیں اردو زبان میں پڑھ کے سنا دیں بالکل اچھا اردو زبان میں پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم فریقین نے ہم دو علماء کرام یعنی مولانا محمد سیف اللہ خان اور مولانا غلام السلیم شاہ صاحب کو ثالثان نے فیصلہ کیا جس بنا پر ہم ثالثان نے فیصلہ کیا کہ فی الحال دونوں فریق کمرہ مباحثہ سے نکل جائے اور فریقین کے دلائل پر ہم دو ثالثان علماء کرام بعد میں خور و خوض سے فیصلہ کے لیے وقت مقرر کر کے فیصلہ لکھنے کے بعد فریقین کو سنانے کے لیے وقت بتائیں گے غلام السلیم صاحب انشاءاللہ غلام السلیم صاحب مقام کا ارشاد فرمائیں گے تو انشاءاللہ ماتر ہوں گے مولانا محمد صاحب زندہ باد زندہ پروردگار عالم مجدتا دین ظاہر اولو دے پارا حق شکار کولو دے پارا دالتا سر جمع سنو پروردگار عالم دامدنا سایہ اقبل دربار چے قبول و منظورو کر رہے ہیں الہ العالمین جدہ کم دلائل و بیرسلل الہ العالمین تخو حاضر و ناظر جدہ دلائل کم وزنی و کم نو وزنی پروردگار عالم طول مخلوق پہ سیٹی باندھے گوری تو پروردگار عالم دا مش پارا ہدایت ذریعہ ہو گئے پروردگار عالم کو مش طول باندھے کرم مہربانی فضل و احسان ہو کے اللہ العالمین مرسلین صاحب مرسلے چکم پدیکار چے تعاونوں کو خدا پاکا تو کرم مہربانی فضل و احسان کو مش باندھے ہو کے الہ العالمین دا کم مجا حق او باطل شکارا کولو پارا کم دلائل وار ویدل انشاءاللہ حق فیصلہ با مش بادا کو خو پدی حق وقت باندھے چکم پسیٹی باندھے موجود دا پروردگار عالم تدا دی ہدایت باعث ہو کر علاقے باندھے کرم مہربانی فضل و احسان ہو کے خدا پاکا حق بول بالا خدا پاکا تو ہدایت ورطا نصیب کے ہدایت دو پا قسمت چینی پروردگار عالم پاکستان شلائے نامت امورک شلے جوانیانے دول شرن محفوظہ و محفوظہ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد و علی آلہ و اصحابی اجمعین لے لگا کھلا کوئی بلدہ ایک خلاص کو اپر روڑی والا ریڈ آرائی والا خالہ جی بازوں کی شکایت ہوا نا غریبی ہو
اپنا پسند تیرا اما وقت سے نظر کرو بس صحیح یا تے اپ دنے تے لائی پئی آئی آنے کا بیان نہیں ہوتا صحیح ہے میرا مطلب کلیئر ہے کلیئر کرنے کا